Sir, अगर इजाज़त देंगे, because after the approval of these demands, I have to sign and authorize this expenditure and then lay it in front of the Assembly. Okay. In the meanwhile, I believe the Pakistan People's Party, parliamentary party, wants to table a resolution in honor of Shaheed محترمہ Benazir Bhutto on her birth anniversary. Honorable senior member of the House, former Chief Minister Sayyid Qaim Shah Saab wants to present that, if you allow us. Please, sir, wo button ko daba dein. Mr. Speaker, sir, I write move under Rule 2256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following motion. Okay, you are allowed. Thank you, sir. This Assembly resolves to honor the memory of Shaheed Benazir Bhutto Sahiba on the occasion of her 78th birth anniversary. Shaheed Benazir Sahiba consistently dedicated herself to the advancement of democracy, peace, and promising future to the country. She dedicated to uphold the supremacy of the Constitution and the sovereignty of Parliament in line with the principles of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Sahib. माफ़ कजो इन काने हाँ जे सुजरे तो ॻाल्हायां. The global recognition she received as the first female Prime Minister of Pakistan and the Muslim world is in a matter of great pride and honor for the people of Pakistan, serving as the Prime Minister from 1988 to 1990 and from 1993 to 1996. Her tenure witnessed significant advancement in terms of building institutions, promoting economic growth, and empowering political stability, all of which continue to be acknowledged internationally. The extraordinary legacy and the unparalleled leadership ideals she left behind serve as a valuable source of inspiration for future governments. Shaheed محترمہ Benazir Bhutto rendered by on her birthday, we celebration annually. We celebrate on her birthday on every 21st of June. This house therefore pays homage to her lifelong struggle for the democracy and betterment of the future of the country. Would you like to say a few words or later maybe? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये बहुत ही अहम रेजोल्यूशन है और हमारे लिए, मैं तो कहूँगा सारे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो मशा ले रहा है. इतना ऑनर हमें
पाकिस्तानियों को शहीद भुट्टो बेनज़ीर साहबा की लीडरशिप ने दिया, ये मैं समझता हूँ कि तारीख़ का हिस्सा तो है, लेकिन मैं समझता हूँ 100 नहीं 1000 साल उनकी क़यादत को याद रखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, आई जब तो यंग एज में आई, बहुत ही कोई 18-20 साल की उम्र थी, लेकिन आते ही, क्योंकि आप जानते हैं कि शहीद भुट्टो तब जेल की काल कुर्सियों में थे, तो उन्होंने उस वक्त आते ही जो कोशिश की और स्ट्रगल की, वो तारीख़ी है सर। यहाँ इतनी ज़ातियाँ थी ज़ियाउल की, जो मिसाल ये लोग कहते हैं अभी कि जी मेरे वर्कर्स ये फलां रोते हैं, और कोई आंसू पूछता नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल रोना है इनका। लेकिन उस ज़माने में जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, तख्ते दार तक गए, और उस वक्त भी नाम और जो स्लोगन था वो ये था कि जिए भुट्टो, ये, और आज तक चलता रहता है। ये जो स्लोगन है वो इतना आसानी से नहीं जा सकता, और चलता रहेगा सदियों, क्योंकि उनकी क़यादत शहीद भुट्टो की या शहीद बेनज़ीर साहबा की बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं दे सकता। और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, कारकुनों को मजबूत किया, कारकुनों को जज्बा दिया कि वो सीना तान कर, सामने बंदूकें हों, वो सीना तान कर खड़े हो जाते थे। मैं एक मिसाल दूँ सर कि उनकी शहादत के बाद खामोशी से उनकी फ्यूनरल हुई, लेकिन 40वें पर काफ़ी वर्कर्स आए उधर गड़ी खुदाबख्श में, तो सामने गोलियों वाले खड़े थे। अब मैं क्या कहूँ कौन थे, और उन्होंने चैलेंज किया, इजाज़त है तो कि थोड़ा टाइम ले लूँगा 10-15 में। तो सामने गोलियां और बंदूकें सामने थी, इधर से हज़ारों वर्कर्स साथ थे जो चाहते थे कि दुआ जाके मांगे। उनमें से और भी जोशीले थे, तो जब तक कि हम उनसे बात करते निकल आए तो 2 लड़कों को सर उसी वक्त सीने में गोली लगी, पीठ पे नहीं लगी, सीने में गोली लगी। उनको उठा के हमने हॉस्पिटल भेजा, एक तो फौत हो गया, एक बच गया। तो ऐसे कारकुन थे जो परवाह नहीं करते थे गोली का, अपने लीडरशिप के लिए जान देने के लिए तैयार थे। अभी तो बताएं तो सही कोई ऐसा एग्जाम्पल, हमने कांग्रेस की भी स्टोरी पढ़ी है। कांग्रेस के लिए यकीनन बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, कोई मरा नहीं लीडरशिप के लिए। कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि गांधी के लिए या नेहरू साहब के लिए कोई किसी ने जान दी हो। यहाँ आपको कई मिसालें, शहीद भुट्टो के शहादत पे लोगों ने अपने आप को जला दिया, परवाह नहीं की। ये ऐसा जज्बा शहीद भुट्टो ने दिया, शहीद बेनज़ीर साहबा ने कारकुनों को दिया। कई मिसालें हैं, लेकिन लास्ट मिसाल जब उनकी शहादत हुई उससे थोड़ा पहले वो आई यहाँ, तो उनके मोहब्बत में कहाँ से, वो शाचन ग्लेशियर से, USA, UK से लोग आते रहे यहाँ। और ये अखबारें नहीं तो तादाद नहीं लिखती, 30 लाख लोग उनको सलाम करने आए यहाँ और उनको देखने आए। ये तारीख़ है। अभी तक मेरी भी 50 साल से ज़्यादा पॉलिटिकल ज़िंदगी है, मैंने किसी लीडर का ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा जो उनका था। और जब उनका प्रोसेशन आया कासास के नज़दीक, बत्तियां बुझ गईं। उन्होंने कहा ये क्या बात है, पूछगछ में थे। अब मैं तफसील तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ये थोड़ा आगे चला जुलूस, तो एक बाम ऊपर हमने देखा, कारकुन जानिसार नाम से थे कारकुन, वो भागे नहीं। और लोग जो देखने वाले थे कोई इधर उधर तितर बितर हुए,
लेकिन कारकुन हमारे आगे बढ़े और उसको दूसरा ब्लास्ट हुआ, उसमें ज़्यादातर कोई 175 के करीब कारकुन शहीद हुए। ये मुझे तारीख बताए, कोई यहाँ भी तारीख दान बैठे हैं, ख़ास तरह से साईं तो हमारे मेहरबान है, खूब बोलते हैं, तारीख दान है, यही बताएं कि जनाब आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल 100 ईयर्स में 200 ईयर्स में ऐसा कोई पढ़ा है जिसमें कारकुन अपने लीडर के लिए जान दे दें, पीछे नहीं हटे। दूसरा एग्जाम्पल कि जब वो घर आई तो आराम नहीं आ रहा था। अब मैं अपना नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने पता किया कि क्या हुआ, तो उनको बताया गया कि जी इतने फौत हुए हैं और कई लोग, चारों अस्पताल में भरी थी, बड़ी बड़ी जो है, ये JPMC, सिविल हॉस्पिटल, खुद आगा खान में भी थे। और मैं अच्छा है तो मैं आपका भी नमन लूँ, जख्मियों में शाह साहब भी बैठे हैं जो आगा खान में थे और मैं पूछने गया था उधर। तो जनाब ऐसा नहीं था कि जो बहुत ही सब गरीब लोग थे, मोहब्बत के लिहाज से न गरीब न अमीर सब उनको मोहब्बत करते थे, उनके जान देने के लिए तैयार थे। सुबह सवेरे जाग रही थी, उन्होंने दोस्तों के साथ विजिट की सिविल हॉस्पिटल। वहाँ एक बूढ़ा टांग ऊपर फटा, तो टूटा फटा बेहोश पड़ा था। उनको कहा गया बड़े मियाँ बीबी आई हैं, तो उन्होंने देखा पता नहीं उसकी टांग थी या नहीं थी, बैठ गया उठ के। उन्होंने कहा बीबी सलाम, आप जिंदा हैं? तो हम जिंदा हैं, मेरे 6 बच्चे हैं। मेरे 6 बच्चे हैं, आप 6 बच्चे ही आप पर कुर्बान, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, कोई परवाह नहीं, लेकिन 6 बच्चे आप पर कुर्बान। ऐसा जज्बा कारकुनों में सर, इतनी खुश हुई हो। फिर इधर भी गई दूसरी हॉस्पिटल्स में, लेकिन उनकी जद्दोजहद जो सर है ये बेमिसाली है। 30 साल जद्दोजहद की, डरी नहीं, धमकी नहीं। जब उनकी पहली गवर्नमेंट गई तो यहाँ शमसुल हसन साहब थे, डेली न्यूज़ के एडिटर, वो उस वक्त लंदन में थे। किसी ने यहाँ से फ़ोन किया, बाबा आपकी गवर्नमेंट तो गई, वो हमदर्द था हमारा पीपल्स पार्टी का, आप तो अभी तो बीबी फिर नहीं आएगी यार, छोड़ो बीबी को। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं बीबी की तबीयत का और जज्बे का, वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और ये जो भी ताकतें उनके ख़िलाफ़ हैं, जो कहते हैं अपनी ताकत, वो परवाह नहीं करेगी किसी को, इंशाल्लाह फिर ज़रूर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म हो। और वज़ीर आज़म हुई, और उन्होंने फिर 3 साल उनको मिले, ज़्यादा तो नहीं मिल सका। अगर वो होती तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान गुलो गुजार हो जाता। इतना जज्बा उनमें और खिदमत का जज्बा था। जो शहीद भुट्टो ने किया वो बेमिसाल, शहीद बीबी ने किया वो बेमिसाल। उनकी शख्सियत, उनकी लीडरशिप और उनकी मोहब्बत अवाम से देखे ना। जब आ रही थी उनको मना किया गया कि आप ना आएँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगी, मेरी ज़रूरत है पाकिस्तान को, मैं जद्दोजहद करूंगी फिर अपने गरीब आवाम के लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में प्योर डेमोक्रेसी मैं लाऊंगी। उसका एक फ़ोटो सब दोस्तों ने देखा है। जैसे वो यहाँ आई, जहाज़ से उतर रही थी, तो उतरने से पहले ऊपर सीढ़ी पर उन्होंने दुआ मांगी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपने लिए नहीं, अवाम के लिए उन्होंने दुआ मांगी कि अवाम खुशहाल हो, तरक्की हो। इतना जज्बा जिसकी हद नहीं। तो जनाब ऐसी शख्सियतें बहुत कम आपको मिसाल मिलेंगी।
और उनको इंशाल्लाह दुनिया याद करेगी, हम तो याद करते ही करते हैं। और लेकिन दुनिया जब वो गई, मिसाल सारी सबकी इजाज़त से 5 मिनट और, अमेरिका गई पहली दफ़ा, क्लिंटन था प्रेसिडेंट, आसिफ साहब तस्दीक करेंगे। तो जब गई हैं उधर वाइट हाउस, तो ये फ़ोटो है मेरे पास, मैं दिखा। तो बीबी के लिए क्लिंटन ने, वहाँ का कोई न सेक्रेटरी न कोई प्यून, वो खुद बीबी के लिए दरवाज़ा खोल रहा है कि आप अंदर आएँ। ऐसी शख्सियत, ऐसी लीडरशिप मिसाल नहीं मिलेगा, और मैं समझता हूँ सदियों में ऐसी लीडरशिप नहीं मिलेगी। इतनी कीमती और इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप। और फिर उनको जाके जब बात की तो कहा कि ये लिए थे जहाज़ हमने F-16, तो अमेरिका न जहाज़ वापस कर रही थी न पैसे ही वापस कर रहे थे। तो बीबी ने कहा ये क्या इंसाफ है, आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हमारे पैसे भी आपके पास हैं और आप हमें जहाज़ भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना अच्छे तरीके से उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने एग्री किया कि हाँ ये जाती है कि आपके पैसे भी नहीं दे रहे हैं, आपके जहाज़ भी नहीं वापस कर रहे। तो उसी वक्त आधे जहाज़ उन्होंने दिए, आधे पैसे दिए, वायदा किया कि बाकी हम आपको पैसे भी और वो देंगे। बड़े बड़े अच्छे आगे इससे पहले थे, उन्होंने ये ताकत नहीं थी कि अमेरिकन लीडरशिप से बात कर सकें, और इनमें जज्बा ऐसा था कि अपना पैसा भी और अपने जहाज़ भी वापस ले आए। कौन करता है ऐसे सर, और कौन ऐसी आर्ग्यूमेंट सुन सकता है? ये उनकी लीडरशिप का कमाल था। तो जनाब और कई मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ, आपकी समझ से खराची नहीं करना चाहता। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, लेकिन जज्बे का इजहार ज़रूर है हमारी तरफ से कि हम बीबी को याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, उनकी लीडरशिप को याद करते हैं, उनकी जद्दोजहद को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, उनको याद करते रहेंगे। बस आखिरी उस जो 18 अक्टूबर को हुआ उसमें शहीद तो बहुत हुए, उनका मुआवजा तो उनकी एक टप्पे की कीमत नहीं है उनके खून की, लेकिन उसके लिए उन्होंने हुक्म किया कि इनका अच्छी तरह से उनकी फ्यूनरल हो और फिर उनके अजीज़ों को जो है मुआवजा दिया जाए। तो वो तो जनाब मिला, लेकिन कोई 20-22 लोग थे, उनका पता नहीं चल रहा था। DNA टेस्ट हुई, कोई पंजाब का था, कोई वही सचिन से भी एक आदमी था। तो उन्होंने कहा अगर कोई नहीं आ रहा है तो इनको यहाँ ही अच्छे तरीके से उनको दफन किया जाए। तो जनाब हमने कहा कहाँ करें, कराची? उन्होंने कहा नहीं, गड़ी खुदाबख्श में शहीद हैं, उनके ही साइड में उन्होंने अपना ज़मीन, कीमती ज़मीन दी कि वहाँ उनको दफन करें, क्यों शहीद वही हैं, ये भी उन्हीं की वजह से शहीद हुए हैं, तो उनको उधर दफन करें। और बड़े अच्छे एजाज़ के साथ वो शहीद वहाँ दफन है। आप हम सब दोस्त जब जाते हैं, जब सलाम करने जाते हैं गड़ी खुदाबख्श, तो उनके लिए भी दुआ करते हैं वहाँ। तो ऐसी शख्सियत के कारकुनों के लिए भी और अवाम के लिए भी वो जज्बा था उनका कि फलाह बहबूद हो, तरक्की हो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ताकतवर दुनिया के ममालिक के सफ़ में खड़ा हो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू। सर कायम अली शाह साहब ने मेरा ख्याल है पूरे हाउस की, और मुझे पूरा यकीन है कि जो दाएं जानिब भी हमारे दोस्त बैठे हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगे, इस रेजोल्यूशन को। उन्होंने पूरे हाउस की तर्जमानी की है। अगर यू नो इफ यू मूव फॉरवर्ड और उसको आप पेश कर लें रेजोल्यूशन को। सर मेरी ख्वाहिश थी मैं बीबी के लिए
Now I move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes, and those are